semi-dynamic website. So what is the static and dynamic website? See, this is a semi-dynamic website. See, here is the registration form is there. We can say it is a dynamic. And when you go to the home page, it's displaying the some contents only. No dynamic is there. Okay, no dynamic contents are there. It's only static. Static means that is final. We can't do anything. Dynamic means that is changeable. We can registration form. We can enter the data. So dynamically website is there. Okay, fully dynamic application registration IBPS website. IBPS की वेबसाइट है. डायनामिक वेबसाइट हम बोलेंगे उनको क्योंकि उसमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे, डालेंगे. ये जो पेज है वो स्टैटिक वेब पेज है. ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब स्टैटिक वेब पेज है, सिर्फ डिस्प्लेइंग. इट इज़ जस्ट डिस्प्लेइंग. बट हम रजिस्टर जब हम अप्लाई करने के लिए जाते हैं, सो इट विल ओपन रजिस्ट्रेशन पेज. सो डायनामिक फील्ड विल बी ओपन देयर. Okay, see, now the dynamic site is started. See, registration number. Okay, so enter here registration number and something. Okay, that is redirected. So semi dynamic websites are going on. So totally dynamic मतलब data store करना, डेटा कीबोर्ड से लेना, मीन्स यूजर से डेटा लेना, स्टोर करना और उसको प्रोसेस करना और देना. सम स्टैटिक पेजेस आर देयर, सम डायनामिक पेजेस आर देयर. So that is HTML for the static web pages, right? And what is the use of CSS? That is used to change the look and feel of the web page. Today, live website we are going to take, that is a facebook.com, and in that facebook.com I am going to change removing the CSS. Okay, I am going to remove the CSS of the Facebook. Then see how it will look like. उसके बाद JavaScript. What is the use of JavaScript? So that is for the validations. Okay, it's backend of HTML. We can say it is the backend of HTML and CSS. It's provide a logical support to a client validation. So that is what a JavaScript. So using these things, BS mean bootstrap, you can become a front-end developer, UI or UX developer, or you can say the web developer without a database. If you learn this with the bootstrap is a framework, if you learn this, so you can become a UI developer. Also, the multinational companies have the requirement for UI developers. And slide by side, you can go for the server side technology, that is PHP, Java, .NET, JSP, and with the database, so we can become a full stack developer. Okay, the full stack developer, front end technology is common. Whatever you are learning now in this training session, HTML, CSS, JavaScript, that is common for everything. You can go for AngularJS or you can go for React.js, that is a framework, SST framework, or Bootstrap, WordPress, XML, web services, React.js, REST API, everything. So you can become a full stack developer. Either you can go for Angular or you can go for React, but that is a common thing. HTML, CSS, JavaScript is the basic for the everything. And you can go for the server side technology, that is Node.js, Servlet, okay. JSP, ASP.NET means .NET, PHP, Perl, Python, everything. So nowadays merge stack and min stack are more popular. Okay, merge stack and min stack. So M stand for MongoDB, MongoDB, Mongo database, more powerful. E stand for Express.js means JavaScript, right? R stand for React.js. N stand for Node.js. So it's more popular full stack. It's a full stack. M for MongoDB database, that is store the database. Express API. Then React is a front end. Okay, UI development. Node.js for server side technology. Node.js. All are the JavaScript version. Okay, sub JavaScript ही है. Express.js means see here why how much JavaScript is very important. Then min stack is same thing. Just
For the R, we are going to use here what? AngularJS. Okay, A stand for Angular. Rest of all things are same, AngularJS. Okay, so this is the full stack. Can see here what is the salary now? Full stack developer, min stack and mun stack. So highest pay for the min stack, mun stack developer in India. This is the average salary. See, are you getting my points? Why it is important? Mun stack. The lowest salary is what? 2 lakhs. So average salary, which is the highest salary and lowest salary. Mun stack and min stack. It's a full stack. Okay, so that is cover the database also. So we can you can complete develop the one of the application. But in this session, we are going to develop UI only. Okay, this is the next level. So step by step we'll go, don't worry. But I'm not going to cover here min stack and mun stack. Okay, so that is full other course. Just I'm giving you here the overview. Okay, that are the server side technology. But if you learn this, so you can become a UI developer. Can search here, no problem. UI developer salary in India. Okay, so depend on this. Tech Mahindra UI developer, take this salary minimum 3 lakhs. Okay, UI Capgemini UI developer having this such type of salary that is reported here. Okay, and in this year record break recruitment हो चुकी है सॉफ्टवेयर फील्ड में record break. The also गवर्नमेंट फ्रॉम तो सब सैलरी क्या बोलते हैं जॉब तो देती नहीं है लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट भी कम होती है. सो सॉफ्टवेयर फील्ड से सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुई है, सबसे ज़्यादा इस 2 साल में जिन्होंने जॉब दिया तो सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब दिया है बेस्ड ऑन योर टैलेंट. 12वीं वाला रो, BA वाला रो, नॉन टेक्निकल रो, टेक्निकल रो. बिकॉज नॉन टेक्निकल के भी ज़रूरत रहती है, बैक ऑफिस के भी वर्क होते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में. ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंटर टू द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. दैट इज दोज हु आर फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ अदर डिपार्टमेंट लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, नो प्रॉब्लम. ओके, the same thing. See, UI developer means HTML, CSS, JavaScript, right? So we are going to learn here. The lot of frameworks are there. The हर एक कंपनी अपने हिसाब से framework use करते हैं. So see here, UX developer, average UI developer, UI or UX developer also we can see. You can go to naukri.com, you can search there, and what is the requirement you can find how much UI and UX developer, right? So the place depend on this place. This is the current front end. Okay, front end developer. We are going to learn here the front end. You are a fresher. See here, front end developer. Front end मतलब वही जो मैंने आपको अभी पढ़ रहे हैं HTML, CSS, JavaScript. That is a front end developer. Okay, space scale you can see here, right? So we are front end developer here. So, okay, that technology covered in the front end developer. See here, front end developer. Okay, now so again I am going to show you one Facebook website. So what is the importance of HTML, CSS and JavaScript? So I am going to show you once again. Okay, so the last session we have seen overviews HTML, JavaScript, world first website. This is world first website. What is CSS, what is JavaScript? I am going to tell you again once again. Okay, so here I am Gunwant Mankar and I have the 12-year plus experience in the I am a real-time expert, real-time expert for the web development. Also I am director and project manager. I am your trainer. Okay, director and project manager, and I am your trainer. Okay, here is my personal website. Yes, so now go to our Facebook. Our latest client is this Zhade Nursing. So I am developing this site. Okay, so yesterday I have posted something here. So and daily I am going to work. Okay, so nothing the data is posted about college, about anything.
So it's a real-time work. Okay. So today, what we are going to see here. So let us see what is HTML, what is CSS, and what is JavaScript. Okay. So this UI, this is the UI login form. Okay. Okay. इसको हम कहेंगे UI. UI डेवलपमेंट. ओके. जो जो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, लुक एंड फील है, वो कैसा दिखता है, इसका डिज़ाइन करना, यहाँ पे कोडिंग करना नहीं है ज़्यादा, वो लुक एंड फील डेवलप करना है, उसको हम बोलेंगे यूआई डेवलपर. बहुत इजी है यूआई डेवलपर बनना. ओके. जस्ट वेबसाइट की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिवनेस दिखने चाहिए, वैसा. सो इसको बोलते हैं यूआई डेवलपर, जिसमें हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं. डेट्स इट. इतना ही हम यूज़ करते हैं. ओके. तो ये सबसे बेस्ट है. और सर्वर साइड पे मैं डेटा पे बटन पे क्लिक होने के बाद डेटा डेटाबेस में जाना चाहिए, उसके बोलते हैं हम सर्वर साइड टेक्नोलॉजी. तो वो हो गया डेवलपर का पार्ट. ओके. डेटाबेस में जाना चाहिए, डेवलपर का पार्ट, उसको बोलते हैं हम डेवलपर, वेब डेवलपर. सो जो भी इंटरेक्ट करते हैं डेटाबेस के साथ, तो उसको एक्चुअल बिजनेस लॉजिक मतलब कोडिंग लिखना पड़ता है. ओके. सो वी आर गोइंग टू डेवलप द UI, राइट, इन दिस ट्रेनिंग सेशन. नाउ हियर व्हाट इज एन HTML, व्हाट इज एन CSS. सी yesterday I also explained, जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कैसा ब्लू हो गया मार्क, सो दैट इज व्हाट CSS, राइट. देन यहाँ पे एजेस दिख रहे हैं आपको, ठीक है, राउंडेड एज लग रहे हैं, दैट इज आल्सो CSS. अट्रैक्टिवनेस, तो बटन का कलर देखिए आप, ब्लू हो गया. और मैंने आपको एक कल एक ये बनाया था. ओके. दिस इज जावास्क्रिप्ट और व्यू पेज सोर्स कोड. ओके. सो मैंने रिमूव कर दिया, आई थिंक बटन वगैरह शो किया था वहाँ पे मैंने. तो ओरिजिनल बटन आपको अलग टाइप से दिख रही थी. ओके. बट दिस बटन इज शोइंग हियर blue, having the background color of blue. Your background color is green. Okay, that is what CSS means, makeup करना है. Okay. And now what I am going to do here, see, this is the original website. Okay. Facebook.com. Okay. It's the live server now. Sorry, it's live server. Okay. Facebook.com, it's live server. Now just I am going to right click here. Okay. And you can do the inspect also, no problem. How the element are available, arrange here, so you can check in the inspect. Okay. So as a testing purpose also we can do the inspect. Okay. So यहाँ पे bootstrap वगैरह यूज़ किया है बहुत सारा, ये हम बाद में देखेंगे. ओके. सो दस आवर रिक्वायरमेंट इज़ व्हाट, कि मुझे ये जो CSS है, विदाउट CSS ये जो साइट कैसी दिखती है, ये जो लॉगिन फॉर्म है फेसबुक का, विदाउट CSS कैसा दिखता है मुझे चेक करना है. ओके. सो ये देखो व्यू सोर्स है यहाँ पे, ये क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है. तो HTML से जावास्क्रिप्ट का हमको व्यू सोर्स दिखता है, जो सर्वर साइड में लिखा है PHP का कोड वो हमको नहीं दिखेगा. तो सिंपली मैं यहाँ पे ये देखो, ये डॉक टाइप का है, HTML ही है. सो 90% वेबसाइट जो है HTML CSS UI डिज़ाइन यूज़ करते हैं. सो मुझे नहीं लगता कि विदाउट HTML तो कोई साइट हो सकती है. कोई भी वेब एप्लीकेशन ले लो, कहाँ से भी बनाओ, जावा में बनाओ, कहाँ भी बनाओ, तो दैट इज रिक्वायरमेंट. So HTML is required. So see here, doc type is HTML, means HTML5 version is this. ठीक है, इस HTML5 version. So once again, okay, so open your Facebook page. Okay. Now just click on, right click on here anywhere, and just click on view page source. Okay. View page source. So client side technology, you are getting here the code, but we are not getting here लॉजिकल कोड. ठीक है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, Ctrl+A, सिलेक्ट ऑल. हमको अगर कोई वेबसाइट अच्छी लगी, उसका UI डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, तो आप उसको कैसे कॉपी कर सकते हो, मैं ये अभी आपको बता रहा हूँ. ओके. मैंने Ctrl+A किया और Ctrl+C किया. ओके. Ctrl+C कॉपी किया मैंने. एंड नाउ आई एम गोइंग टू पेस्ट इन माई नोटपैड और एनी नोटपैड एडिटर. ओके. ये कैसे डाउनलोड करेंगे हम आगे देखेंगे, डोंट वरी, अभी तक हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट, आई एम टेकिंग हियर नॉर्मल टेक्स्ट. ओके. आई एम गोइंग टू पेस्ट हियर. नाउ जो भी मैंने फेसबुक के सर्वर से ओरिजिनल पेज से जो डेटा कॉपी किया है, वो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है. ये देखिए, ऑब्जर्व केयरफुली गाइस, ये देखिए सिंपल थिंग है. मैंने राइट क्लिक किया, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक किया, सो आई गॉट हियर द सम
code of HTML and CSS. Okay, see this HTML, CSS and JavaScript. See whatever the HTML are written, that is a HTML code, and what is a script are writing here. Script means JavaScript, और जहाँ जहाँ आपको स्टाइल सीट या फिर स्टाइल वर्ड दिख रहा है वो है CSS, वो है CSS. एवरीथिंग यू आर गोइंग टू राइट इन अ सिंगल पेज. ठीक है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब एक ही पेज पे हम लिख सकते हैं या सेपरेट पेजेस पे भी हम लिख सकते हैं. नाउ एंड कंट्रोल A, कंट्रोल C. ओके, कॉपी किया हमने और इधर पेस्ट किया. कोई भी एक एडिटर में आप पेस्ट करो. अगर मैं नॉर्मल एडिटर में पेस्ट करूँगा तो मुझे वो कलरफुल में दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने ये वाले एडिटर में पेस्ट किया. ठीक है, एक्चुअली आई एम गोइंग टू टेक हियर, कंट्रोल A करता हूँ मैं, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ और नॉर्मल टेक्स्ट के अच्छा मैं HTML टेक्स्ट लेता हूँ जो मुझे दिखने में आसानी हो, कलरफुल दिखे. सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू और HTML पेज पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ का HTML सारा मैं निकाल देता हूँ. ठीक है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू रिमूव. नाउ सी इट विल शोइंग एज अ कलरफुल नाउ, सो इट विल बी इजी टू फाइंड मी. तो मुझे जो चेंज करना है ना वो मुझे फाइंड करने के लिए इजी जाएगा, ये कलरफुल दिखेगा. ठीक है, yes. So now I want to save this page. Save as, save as. Now this is duplicate page, guys. Okay, this is a duplicate page, right? I am going to giving you name FB static. Okay, FB static dot html. By default it is to saving as a dot html or dot htm. दो एक्सटेंशन आप दे सकते हैं, एक है dot html और dot htm. FB static, I have given this name FB static. So save as this page. Okay, save. Right. So check it out first whether our page is saved or not. Okay, see FB static page. Okay, see here, observe carefully, that is very important. Okay, so observe carefully, that is very important. FB static. How to run the HTML page? Simply double click. Okay, simply double click, that will be open. Okay, so I have copied this source code from our website. Okay, so how you will know which is duplicate and which is original? Okay, this is original. Observe carefully, guys, carefully observe करिए. This is original. Okay, you can refresh. This is original and this is a duplicate. See what is our name of page? fbstatic.html, right? fbstatic.html. Now I am going to create, I am going to click on this create new. Anything is happening? Nothing is happening. I am going to click on here where it is going to data something else. Okay, right? So we can say this is, we have copied UI from other website. हमने ये UI कॉपी कर चुके हैं. सो इज इट क्लियर? यस एवरीवन, ये आपको समझ में आ गया? मैंने कॉपी किया UI कोड, यहाँ पे मैंने डाल दिया है, दूसरे साइट का नाम दिया FB स्टैटिक. यस, इतना समझ में आ गया आपको? ओके, सी हियर, हम हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई भी आप वेबसाइट पे जाइए, हम उसका UI ले सकते हैं. ओके, UI मीन्स ये जो अपनी डिज़ाइन है ना, ये कोई भी साइट से आप ले सकते हो डिज़ाइन. सो मैं फेसबुक पे गया हूँ और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया. सो मुझे इसका पेज सोर्स देखना है, HTML, CSS, JavaScript. So just click on here, view page source. Okay, so we'll get here the source code that is written only in the HTML, CSS and JavaScript. The logic is written in the PHP. वो आपको नहीं मिलेगा. ओके, कोई भी डेवलपर आपको फ्री में सोर्स कोड नहीं देता है, ये सिर्फ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है. वी कैन व्यू HTML, CSS, JavaScript हम व्यू कर सकते हैं, लेकिन जो PHP में लॉजिक लिखा है बटन पे क्लिक होने के बाद डेटाबेस में जाना चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा. सो वी आर कॉपिंग दिस सोर्स कोड. ओके, HTML, CSS, JavaScript, it's a HTML, doc type is HTML. We have used here the CSS attractiveness for the attractiveness and scripting language for validation. Okay, so just I am going to copy it
ये मैंने कॉपी किया और मैं एडिट प्लस पे जाऊँ या फिर कोई भी नोटपैड पे जाइए आप, यहाँ पे आप न्यू फाइल लेके पेस्ट करिए। ओके, सो न्यू फाइल HTML पेज लो या कुछ भी लो, यहाँ पे पेस्ट कीजिए या फिर यू कैन टेक नोटपैड आल्सो, नो प्रॉब्लम। ओके, यही मैंने वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया है। सोर्स कोड आई हैव पेस्ट हियर, राइट। एंड नाउ ये मैंने पेस्ट किया और इस फाइल को मैंने सेव किया, राइट। अगेन आई एम गोइंग टू डिलीट दिस वन। ओके, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस वन। मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। वंस अगेन आई एम गोइंग टू शो यू। ओके, नाउ सी, this is a original page, facebook.com. Okay, you can copy this. See here, https www.facebook.com. It's a live server, right? It's a live server. Right click here, view page source, just copy this code. Okay, UI का कोड है ये, कॉपी कीजिए। go to the notepad or any editor. Okay, any editor, new HTML पेज, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो HTML एडिटर मैंने एडिट प्लस इसलिए यूज़ किया कि मुझे कलरफुल मिलेगा, मुझे इजी जाएगा कि मुझे इसमें एडिट करना है ना, इसीलिए। सो सिंपल अगर आपने नोटपैड लिया तो आपको थोड़ा आंखों को परेशानी जाएंगी, सर्च नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, फिर मैं इसको सेव करता हूँ। सेव दिस कोड एंड आई एम गोइंग टू गिविंग एज अ नेम माई FB पेज। Okay, my FB page, and it is saving as an extension of HTML or .stm, .html or .stm. ठीक है, save this page. Now my file is saved in our folder ITR 9:30 AM 27 Jan. So see here, this icon is changed. Okay, icon is changed as a web page. And how to run this HTML, it's simply double click on it. Okay, so web browser will be open. So sir, any requirement for the internet? No, because you are running your page in your client, in your system only. No requirement of internet to run the HTML web page. अगर वही वेब पेज अगर आपके सर्वर में है, so that time we required internet connection. ओके, इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है मुझे वेब पेज रन करने के लिए, बिकॉज आपका जो सोर्स है वो आपके लैपी में अवेलेबल है। ओके, सो डबल क्लिक ऑन हियर। नाउ सी हियर व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, सी हियर पाथ। ओके, CSID directory. In this directory we have the classes name folder. In that ITR 9:30 AM, मतलब 9:30 बजे, और ये मैंने यहाँ पे लिखा और उसका मेरा पेज का नाम है myfbpage.html एंड दिस इज ओरिजिनल। ओके, दिस इज अ सर्वर वाला पेज है ये देखिए, ये सर्वर वाला पेज है, ये रिडायरेक्ट हो रहा है सर्वर पे। और ये मैंने कॉपी किया वाला पेज है जो मेरा है। ओके, वही हमने कॉपी किया, यहाँ पे हम एडिट करेंगे और यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे। ठीक है, इसमें तो हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सर्वर का पेज है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन उसका कॉपी बना के हम हमारे फाइल में लेके उसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इज इट क्लियर? सो दिस इज आवर डमी पेज। या Excuse me, sir. या Sir, this I have written in Notepad. हम्म। Uh, आप क्या यूज कर रहे हो वो टेक्स्ट हाँ हाँ, एडिट टाइप प्लस, करने के या लिए? एडिट प्लस, एडिट प्लस। सो व्हाई आई एम गोइंग टू यूज एडिट So प्लस, बिकॉज I have to download it. या ओके ओके, आई विल प्रोवाइड यू लिंक, Yes, sir. डोंट वरी। या मैं आपको क्रैक वर्जन देता हूँ। ठीक है, आपको मैं क्रैक, So क्योंकि वो 45 डेज का आएगा ना, नहीं, इसलिए। मैं साइमल्टेनियसली कर रही हूँ ना, आप जो बता रहे हो हाँ वो कर हाँ, रही हूँ पीछे पे, ठीक है, इसीलिए मुझे चलेगा। सर्च करने में हाँ वो हाँ, मिल जाएंगी नोट। ओके। सो एक्चुअली कैसा, मैं नोटपैड इसलिए यूज़ करता हूँ कि मैं सो मेनी टेक्नोलॉजीज़ पढ़ाता हूँ ना, तो एक ही नेटपैड पे मैं इतने सारे हम पढ़ा सकते हैं, तो वर्क कर सकते हैं इसमें में रूबी आप पाइथन जहाँ एवरीथिंग। जहाँ सेंड कर सकते होंगे लिंक तो सेंड कर दीजिए ना। हाँ चलेगा मैम, मैं, ओके यू कैन चैट गो बॉक्स फॉर। में हाँ, डाउनलोड कर दो। कैन गो टू द डाउनलोड फ्री एडिट प्लस, यूज फॉर दिस 45 डेज। सो गो टू द प्रॉपर वेबसाइट, एडिट प्लस की ओन वेबसाइट है।
So I am sending you in the chat box. So you can download from here. Okay, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. Right. So we are not started programming. Okay, हमारा और थोड़ा theoretical portion बाकी है. Just I am giving you overview of HTML, CSS and JavaScript. So see, I want to do some changes now. My FB page.html. Okay, my FB page.html. This is my copied page. Okay. So what is our requirement? Actually, I want to remove the CSS. जो look and feel है ना, वो मुझे remove करना है यहाँ से. और मुझे चेक करना है कि विदाउट मेकअप मेरा फेसबुक पेज कैसा दिखता है. ओके, सो नाउ दिस इज़ अ कोड. यू कैन यूज़ द नोट पैड ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. बस सर्च करने में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है कि बहुत बड़ा कोड है ना ये, इसलिए. सो मुझे सी एस एस रिमूव करना है. सो कैन फाइंड अ स्टाइल सीट वर्ड वेर वेर यू आर गेटिंग द स्टाइल सीट. ओके, स्टाइल सीट जहाँ पे भी आपको स्टाइल सीट वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब वो है सी एस एस. दैट इज़ अ लुक एंड फील. सो आई वॉन्ट टू डिलीट दिस एवरीथिंग. जहाँ जहाँ है ये देखो, यहाँ से इनकी लिंक टैग चालू हो गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो है. ठीक है, मैं पहला सी एस एस हटाया है. सो सेव वंस अगेन. मैंने अभी पहला सी एस एस हटाया है. ओके, नाउ लुक एट हियर. और मैं मेरे पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ. क्या हो गया है? आर यू ऑब्जर्विंग? यस, केयरफुली. समथिंग इज हैपन. ओके, ये देखो, ये ब्लैक हो गया. देखो कैसा दिख रहा है अभी. ये ओरिजिनल देखिए, दिस इज एन ओरिजिनल. ओके, हाउ इट इज़ लुकिंग नाउ. पहला सी एस एस निकाला मैंने. ठीक है, पहला सी एस एस निकाला. ये देखो, मैं यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये ब्लू हो रहा है. सो यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नथिंग इज हैपनिंग. हाँ, अगेन नेक्स्ट सी एस एस आई एम गोइंग टू रिमूव. Are you understanding what is the use of CSS? See, so again I am going to refresh. Okay, something is happening, something is happening. Okay, ये alignment भी proper नहीं है. ये जो box है, you can see this box. Okay, also you can see green button. Okay, button निकल गई. Right, button मतलब बैकग्राउंड कलर ऑफ दैट बटन. राइट, सी हियर बैकग्राउंड कलर देखो कैसा सेंटर में है, बोल्ड है ना, कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे देखो सी एस एस निकालने के बाद मेकअप निकाल रहे हम. सो अगेन आई वांट टू रिमूव दिस वन. स्टाइल सीट जहाँ जहाँ है मैं वो रिमूव कर रहा हूँ. ओके, सो चेंजेस विल बी हैपन इन द कॉपीड. कॉपी जो किया है वहाँ पे चेंजेस होंगे, सर्वर में चेंजेस नहीं होंगे. अगेन फॉरगेट पासवर्ड समथिंग. ओके, अगेन आई एम गोइंग टू रिमूव दिस थिंग. यस, स्टाइल सीट जहाँ जहाँ है मैं वो रिमूव कर रहा हूँ. एंड नाउ लेट अस सी हाउ इट इज़ लुकिंग नाउ. ओके, रिफ्रेश वंस अगेन. ओके, समथिंग इज़ वेरी डिफरेंट. अगेन फाइंड आउट वेयर इज़ द स्टाइल सीट. और कहाँ है, यू कैन चेक इट आउट. कैन फाइंड हियर स्टाइल सीट. ओके, सी हियर इज़ आल्सो द स्टाइल सीट. सो ओके, सो यहाँ से मुझे निकालना है ये link type this. Okay, yes, removed. And now see, after that how it is looking. Oh my god, it's not looking good. Okay, now do you observe this is original button yesterday you have show you. Okay, see, this is original button. Now how it is looking. This is our original HTML content, guys. Okay, this is our original HTML content. This is the original image. Okay, and by using the CSS we have just changes some size of image वगैरह वगैरह थोड़ा चेंज कर दिए है. ओके, सो दिस इज ओरिजिनल लुक एंड फील. दिस इज HTML एट्रीब्यूट्स और कंपोनेंट्स. ये देखो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर लिंक आती है. यू कैन सी वर्ल्ड फर्स्ट वेबसाइट आल्सो. यू विल गेट द बैक वर्ल्ड फर्स्ट वेबसाइट. यू ऑलवेज सी हियर, बिकॉज मैंने ये जो साइट बहुत बार विजिट कर चुका हूँ, इसलिए वो कलर चेंज हो गया है. लेकिन इट्स अ ब्लू कलर हाइपर लिंक. ओके, इट्स अ ब्लू कलर हाइपर लिंक. सी द ब्लू कलर हाइपर लिंक. राइट, दिस इज ओरिजिनल HTML component. This is what original HTML components.
See here, this is our original HTML component. So I have also show you that button yesterday. Okay, see, this is link. So without CSS, how it is looking? It's not looking good. आजकल ज़माने में लोगों को सिर्फ लुक एंड फील बेटर चाहिए, सब वर्क होना चाहिए लेकिन दिखने में बहुत कुछ अच्छा चाहिए. सो दैट्स वाई द सी एस एस इज़ मोर पावरफुल फॉर दिस पर्पज़. सी यार, ऐसे एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे क्या फेसबुक? फेसबुक के ऐसी एप्लीकेशन रहेंगी तो, है ना, लुक एंड फील नहीं है, अट्रैक्टिवनेस नहीं है, कैसे यूज़ करेंगे? राइट, हमको ये चाहिए. ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना. दैट इज़ द थिंग. दैट्स वाई सी एस एस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग का यूज़ क्या है? वही मैंने आपको बताया. वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट टुडे. सो वी कैन गो द एनी वेबसाइट. ओके, सो सपोज आई एम गोइंग टू गिव, जहाँ पे से स्क्रिप्टिंग यूज़ है वो दिखा शो करता हूँ आपको. सो सी हियर, महाडीबीटी वेबसाइट. It's a government website for scholarship. So we can click here the applicant, and without entering the any data, I want to submit my data to the server. Okay, so this data will not go to the server. सर्वर में ये जाएगा नहीं, क्लाइंट साइड ही वैलिडेट होगा, मतलब मेरे तरफ ही वैलिडेट हो रहा है. ओके, सी हियर व्हाट इज रिक्वायरमेंट. यूजर नेम इज रिक्वायर्ड. Okay, so this alert message is showing here. It shows alert message. This message is written, means done by script. That is what? JavaScript. So I am writing something in I am writing something here in username. So again I am going to click on the login. So before sending the data to the server, it is showing such a message. What is that? Required password. इसके पहले क्या बताया था? Required username. So ठीक है, चलो हम पासवर्ड भी दे देते हैं. ओके, देन अगेन रिक्वायर्ड कैप्चा. ओके, चलो कैप्चा भी देते हैं हम, कुछ भी डाल रहा हूँ मैं. देन इट इज़ वैलिडेटिंग. ओके, सो ये डाटा चेक हो रहा है सर्वर साइड से, क्योंकि वो कैप्चा ले रहा है ना, इसके वजह से वो सर्वर साइड पे जा रहा है. सो जो सर्वर साइड पे नहीं जा रहा है वो क्लाइंट साइड वैलिडेशन, दैट इज नोन एज जावास्क्रिप्ट. ओके, क्लाइंट साइड, it's a backend for HTML and CSS. Okay, HTML, it is provide a logical support or the client validation. So that is use of JS, JavaScript. Example 1, open with notepad. See, I have written here alert, hey, welcome. So just I am going to open this one. It's showing hey, welcome. Okay, now I want to do some changes here. Required something. Required username. Right, सेव कर लीजिए. अगेन रिफ्रेश. सो इट इज शोइंग दैट रिक्वायर्ड यूजर नेम. यस, वैलिडेशन पर्पस. ओके, दिस इज वैलिडेशन पर्पस, क्लाइंट साइड वैलिडेशन. दैट इज यूज ऑफ व्हाट? जावास्क्रिप्ट. ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ समझ में आ गया होगा कि क्या यूज़ है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का. सी द सम मेम्स. ओके, HTML, JS, CSS, ऐसे कुछ मेम्स डालते रहते लोग. व्हाट इज HTML, ये क्या है ना, CSS क्या है. राइट, मेकअप करके, विदाउट मेकअप, फुल स्टैक डेवलपर. ओके, व्हाट एवर ऐसे मेम्स आते रहते, इसलिए वैसे वो मेम्स आते हैं. ठीक है, राइट. नेक्स्ट. So this is about the overview of HTML, CSS and JavaScript. So now come to the over here point. Yes, next one. So this is server side and full stack development, min stack and merge stack. So now we'll move towards here our technical topics. So what is network? Okay. So before developing the website, they have developed the network for sharing the information or resources. क्योंकि अगर आपके पास एक ही कंप्यूटर में डेटा है लेकिन मुझे 10 कंप्यूटर में डेटा
देना है, लेकिन वो 10 कंप्यूटर में डेटा देने के लिए मुझे एक डिवाइस या पेन ड्राइव या कुछ भी हम लेके हर 10 कंप्यूटर में डालना पड़ेगा, राइट। सो मुझे एक ही कंप्यूटर में डेटा है लेकिन 10 कंप्यूटर को देना है, तो उससे अच्छा मैं उसको सर्वर बना लूँ और एनी वन कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम माई ओनली वन कंप्यूटर। सो हियर द डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर इन अ सिंगल कंप्यूटर। हर एक कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, एक ही कंप्यूटर में स्टोर करेंगे और एनी वन कैन यूज़। सो ऐसे टाइप के हमको नेटवर्किंग की ज़रूरत गिरती है। सो दे हैव डेवलप द फर्स्ट नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, मेरे पास लैब है, आपके कॉलेज में लैब रहती है, कंप्यूटर लैब सपोज 20 मिनिमम 20 टू मोर देन 20 पीसीस आपके रहते हैं, और मुझे हर एक कंप्यूटर से रिक्वायरमेंट है कि प्रिंटर चाहिए, हर एक कंप्यूटर को प्रिंटर चाहिए। तो आपके पास 10 पीसी है तो 10 प्रिंटर लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो क्या करेंगे, एक पीसी को हम प्रिंटर को अटैच करेंगे, उसको हम सर्वर बनाएंगे, और बाकी कंप्यूटर हमारे क्लाइंट रहेंगे। सो जो प्रिंटर का ड्राइवर है वो हम शेयर करेंगे बाकी सब कंप्यूटर के साथ। मतलब क्या हो गया, रिसोर्स शेयरिंग, प्रिंटर इज शेयरिंग। नाउ यू कैन गिव द प्रिंट कमांड फ्रॉम एनी वन कंप्यूटर, सो द प्रिंटर विल गिव यू द प्रिंट आउट, राइट। सो हमने मिनिमाइज़ किया है कॉस्ट ऑफ प्रिंटर की। 10 कंप्यूटर अटैच है तो 10 कंप्यूटर के लिए 10 प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं है। उस प्रिंटर को हमने नेटवर्किंग में लगा दिया, उसके ड्राइवर शेयर कर दिए, सो एनी वन कैन गिव द प्रिंट एंड दिस प्रिंटर गिव यूज द प्रिंट आउट। आप कहाँ से भी कमांड दे सकते हो। सो दिस ऑल आर कंप्यूटर आज वर्किंग एज अ क्लाइंट, एंड द मेन कंप्यूटर जहाँ पे आपने प्रिंटर को अटैच किया है वो मेन कंप्यूटर एज अ वर्किंग एज अ सर्वर। अगर वो आपने प्रिंटर कंप्यूटर बंद कर दिया जहाँ पे आपका प्रिंटर अटैच है, वो जो अगर कंप्यूटर आपने बंद कर दिया तो आपका प्रिंटर वर्क नहीं करेगा। आप अगर कोई भी कंप्यूटर से प्रिंट देंगे तो वर्क नहीं करेगा। सो दैट विल बी मस्ट इन द नेटवर्किंग, और आपका सर्वर ऑन रहना चाहिए, ठीक है। सो वही तो उसी टाइम पे वो वर्क करेगा। सो द फर्स्ट, इसीलिए उन्होंने नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए, राइट। सो द वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क दैट इज नोन एज व्हाट, ARPANET, okay, ARPA, Advanced Research Project Agency Network. What is that network? Means collection of computer that is interlinked together. Okay, that is called the network. So we are going to share the data, share the resources. The first protocol in the IT industry is what? FTP. It's a file transfer protocol. When we send a mail to the anyone, so we are attaching some file there. कुछ ना कुछ हम फाइल अटैच करते हैं, दैट इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। या फिर हम वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ से कुछ भी हम डाउनलोड करते हैं फाइल्स वगैरह, दैट इज बिकॉज ऑफ द एफटीपी प्रोटोकॉल, इट्स अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो दैट इज इन्वेंटेड फर्स्टली in IT industry, that is what, FTP protocol, and the first network is invented, that is what, ARPANET, we can say the ARPANET, okay। So networking concept is started, after that networking concept is started, उसके बाद इंटरनेट चाहिए। अब नेटवर्क तो हो गया लेकिन जैसे लिमिटेड हो गया वो, अगर कॉलेज के लिए तो कॉलेज के लिए हो गया, लेकिन मुझे एक्सेस करना है डेटा थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। यू आर यूजिंग द फेसबुक, पूरे वर्ल्ड में हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में हम यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ इंटरनेट, लाइव सर्वर है, हम कहाँ से भी एक्सेस करते हैं। सो मुझे रिसोर्स ऐसा होना चाहिए कि वो इंडिया में पर्सन बैठा है तो मुझे जो डेटा उसको देना है वो मैं बोलूँगा इस वेबसाइट पे जाइए, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको वहाँ पे कंटेंट मिल जाएंगे। एक सिंपल थिंग। सो दैट्स वाई दे हैव इन्वेंटेड one concept that is known as internet, okay। actually there is a no cost of internet। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में केबल ही लेना है, लगा देना है, इंटरनेट चालू हो जाएगा। लेकिन एयरटेल, आइडिया, जियो हमारे से पैसे क्यों लेते हैं? क्योंकि जितने भी कंट्रीज़ है जो एक में के साथ फाइबर ऑप्टिक से कनेक्टेड है, तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो समुंदर के अंदर से क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन करके, मतलब समुद्र जो जितने भी हमारे ओशियंस है, समुंदर है, उसके अंदर से फाइबर ऑप्टिक की केबल बिछाई है, ओके। सो एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्टेड है, जैसे मुंबई और एक दिल्ली, ओके। मुंबई में पॉइंट है, मुंबई से पॉइंट दिल्ली, दिल्ली से फिर चेन्नई, ये हमारे पॉइंट्स है, वहाँ से इंटरनेट हम एक्सेस करते हैं। फिर वो लोकल प्रोवाइडर आ गए हैं बीच में, फिर वो जो पैसे लेते हैं हमारे से,
जियो इंटरनेट वगैरह जो भी है वो मेंटेनेंस का कॉस्ट लेते हैं, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल मेंटेनेंस करने के लिए। तो एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट इज़ ज़ीरो, बट इंडिया या फिर यूएस ऐसा सोच रहे हैं कि हम एक सैटेलाइट लॉन्च कर दें जीपीआरएस का, जो कि पूरे सिटीजन ऑफ अर्थ के लिए पूरा मतलब सैटेलाइट लॉन्च करो, और जितने भी रूरल एरियाज़ है, जो लोकल एरियाज़ है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं रहते ना, क्योंकि वहाँ पे हम टावर नहीं लगाते, जैसे ऐसे रूरल एरिया खेड़े गाँव हो गए वहाँ पे। तो हम एक काम करेंगे, लॉन्च करेंगे सैटेलाइट, सो हम फुल्ली इंटरनेट का यूज़ कर सकेंगे, तो ये फ्री में रहेगा। ओके, सो जीपीआरएस तो मिलिट्री सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो ये आने आगे आके करने वाला है, तो देखते हैं कि करेंगे कैसे। अगर ऐसा लॉन्च हो जाता है हमारा सैटेलाइट, तो हमारे लिए सबके लिए फ्री हो जाता है इंटरनेट। ओके, सो उसकी ज़रूरत नहीं रहेंगी सैटेलाइट से इंटरनेट। अभी हम जो है फाइबर ऑप्टिक से यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, और वहाँ पे उसके बाद वायरलेस हो रहे हैं, ठीक है। सो तो इंटरनेट की ज़रूरत थी हमको, इंटरनेट चाहिए एक में के साथ। कंप्यूटर वायरलेस है, वायर से कनेक्ट कीजिए, वो आप कहाँ पे भी रहो, वहाँ से हम डेटा रिसोर्स या शेयरिंग होनी चाहिए। That's why they have invented the concept that is known as a internet. Okay, so internet means what? International networking. अभी हमने नेटवर्किंग देखा, so it's intranet. Okay, intranet, that is an intranet. Intranet means within the organization. Okay, intranet means within the organization. देखो, कुछ कुछ अगर आप कॉलेज में वर्क करते हैं या फिर कॉलेज में स्टडी करते हैं, तो उस कॉलेज में सिर्फ वही वेबसाइट ओपन होती है, वो जो उसको वही कॉलेज में ओपन होना चाहिए। और अगर वो आप यूआरएल कहाँ से भी अगर एक्सेस करेंगे तो नहीं होता है। एक पर्टिकुलर साइट है कि वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में ओपन होंगी, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में जाते हैं आप, उनकी जो यूआरएल है ना, यूआरएल, ये जो यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे डब्ल्यू डॉट समथिंग जो भी है, तो बैंक में जाएंगे तो वो उनका जो पर्टिकुलर डोमेन है वही इंटरनेट में मतलब ओपन होगा। वो हम उसको मोबाइल में ओपन करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होगा उनके बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स, राइट। सो वी कैन नॉट यूज हियर, सो दैट इज वर्किंग इन द इंट्रानेट मीन्स we can open that site only within the organization that are connected to each other। जो भी लैन में कनेक्टेड है उसी में वो ओपन होंगे, आउट नहीं होंगे। लेकिन व्हाट इज इंटरनेट? इट्स अ थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट्स अ थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोई भी डिवाइस से, कहाँ से भी, किधर से भी हम एक्सेस कर सकते हैं वो वेब एप्लीकेशन को, वेबसाइट को। दैट इज़ नोन एज इंटरनेट। दैट कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस, क्योंकि हमको बार बार वहाँ पे जाना नहीं है, वहाँ से डेटा लाना नहीं है, इसलिए दे हैव इंट्रोड्यूस द वन कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज इंटरनेट। घर में बैठो, ऑनलाइन करो, ऑनलाइन सब कुछ करो। इंटरनेट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, वेबसाइट आ गए है, वेबसाइट में एजुकेशनल वेबसाइट आ गए, घर में बैठ के पढ़ सकते हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना है, घर से बैठ के हम स्टडी कर सकते हैं। Okay, so that is use of internet. So internet is stand for what? International networking. Okay, internet, it's a inter and net for networking, it's a international networking। अब इंटरनेशनल नेटवर्किंग है मतलब हम कहाँ से भी डेटा किधर से भी सेंड कर सकते हैं, आपको उस लोकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। when it is invented, that is 1990। okay, so the programming languages are started from 1970s। 1970 से सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस चालू हो गए। 1991 से जावा, 95 से जावा स्टार्ट हो गए। ओके, सो द वेब डेवलपमेंट प्रोसेस इज स्टार्टेड फ्रॉम 90s से हम वेब डेवलपमेंट हम स्टार्ट किए। ओके, सो इंटरनेट, जब इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट वेब डेवलपमेंट का काम ही नहीं था ना, क्योंकि हम एक ही कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। सो इंटरनेट इज अ नेटवर्क विच आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स। नो कंपनी ओन्स द इंटरनेट। सो मैंने आपको आपको बताया कि इंटरनेट की कोई कंपनी है ही नहीं, देर इज़ नो कॉस्ट ऑफ इंटरनेट, और कोई भी उसका क्या बोलते पेटेंट वगैरह कुछ है ही नहीं ऐसा कि किसी का भी वो इंटरनेट है ही नहीं। सो जस्ट वो पैसे लेते हैं, वो उनके मेंटेनेंस के पैसे लेते हैं, जो भी वो टावर वगैरह केबल्स केबलिंग वगैरह करते हैं उनके। सो इट इज़ अ कोऑपरेटिव एफर्ट गवर्न बाय अ सिस्टम दैट इज स्टैंडर्ड रूल्स। ओके, द पर्पज ऑफ कनेक्टिंग द कंप्यूटर टुगेदर, so that is what, to share the information। and internet is what, the collection of web applications, right, a group of pages। and what is the web application? It's a group of pages, okay, group of component that having the heading, paragraph, integer, images, buttons and table। so you can go to the any website। okay, this is one website that is a collection of web pages। so you can create here the create a new account, so it is sign up form is open।
Okay, this is the next page, this is another page, right? It's a group of web pages. This is the one website, group of web pages, so that is available. Okay, web applications, right? So you can see the some brief history about the web, how it is born, the web. I also told you in the last class. So Sir Tim Berners-Lee is the founder of WebPage. Okay, HTML. So the first program HTML programming language, or you can say the markup language, that is the HTML. The web is born in Particle Physics Laboratory, that is CERN in Geneva. Okay, that is in the Switzerland in 1989. 89 से start हो गए. There are a computer scientist that is known as Tim Berners-Lee. His first proposed this information management system that is known as hypertext linking. Okay, that is hypertext is known as linking the documents. Hypertext means linking the document. Okay, so his partner also, Robert, he has developed the prototype. Okay, to review that things. So the first several year the web pages were only the text. तो वहाँ पे जब उन्होंने स्टार्ट किए वेब पेज डेवलप करना, उनको पता चल गया कि हमको इंटरनेट का यूज़ करके हमको हमारा इंफॉर्मेशन व्यू और शेयर कर सकते हैं. लेकिन जो फर्स्ट वेबसाइट थी हमारी इन्होंने जो डेवलप की है, ओके ये नहीं है, बर्थ ऑफ वेब, इसमें यू विल नॉट गेट एनी इमेजेस. Only text are there. Okay, only text. No images are there. See, this is the world first website, home of the first website. No images are there. Only text are there. Okay, images भी दिखना चाहिए, सब दिखना चाहिए. Okay, so वो additional फिर ऐड किए, न्यू कॉन्सेप्ट एडिशनल, जाते जाते आगे जाते. ओके, सो सब ओनली टेक्स्ट डेटा इज देयर. सी ओनली द टेक्स्ट डेटा. नॉर्मल वेबसाइट दे आर डेवलप. ओके, द कॉन्सेप्ट इज स्टार्टेड, नो प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट इज स्टार्टेड, उसके आगे आगे हम इम्प्लीमेंट होते जाते हैं. ठीक है, तो आज के टाइम पे हम इतने क्लासिक वेबसाइट एंड डायनामिक एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम देख रहे हैं. सो द फर्स्ट टाइम जैसे उन्होंने लिखा कि इट्स डिफ़िकल्ट टू बिलीव, मतलब अगर 1992 में इतने 50 से ज़्यादा वेब पेजेस, वेब सर्वर तैयार हो चुके. सो 1989 से स्टार्ट किया, लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, लोगों ने डेवलप करना चालू कर दिए, वहाँ से हमारा इंटरनेट या फिर वेब एप्लीकेशन का बर्थ होना चालू हो गया. सो द टीम बर्नर-ली had डिसाइडेड फर्स्ट तो 1989 to 90, so they had developed the internet or IP address. Okay, then HTML, that is a markup language. Then hypertext transfer protocol he has developed, because without HTTP we can't transfer the web page. Okay, without HTTP we can't transfer the web page to the server. So see here, I am going to copy paste here, open this notepad and paste here. See what is observing here, HTTP is mandatory. Any website, copy this link and paste here. HTTPS is there. What is the difference between HTTP and HTTPS? Yes. HTTPS. So it's a protocol. It's a hypertext transfer protocol that send a request to the server. That send a request to the server. ये ब्राउज़र है, कौन सा ब्राउज़र है? गूगल क्रोमो. ओके, गूगल क्रोमो ब्राउज़र है. हम यहाँ पे डायरेक्टली फेसबुक भी लिखे तो भी वो रिडायरेक्ट कर रहा है ऑटोमेटिक. सो www and HTTP is automatically added. Okay, automatically added. It's a hypertext transfer protocol. Without hypertext transfer protocol, how can send the request to the server? इस फेसबुक के सर्वर को रिक्वेस्ट जा रही है, देन इट विल गिव यूज द रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स मीन्स व्हाट? द होम पेज और एनीथिंग, द डेटा फ्रॉम दिस सर्वर. समटाइम्स अगर इंटरनेट बंद रहता है या कुछ होता है, तो जब भी हम google.com लिखते हैं तो यहाँ पे नहीं आता है, समथिंग इज डिस्प्लेइंग
check your internet connection or something. So that means you have not given the response from the server. आपको सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं मिला. ओके, यू कैन फाइंड, मैंने google.com लिखा यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिंक कॉपी कर रहा हूँ. ओके, सी हियर, HTTP ऑटोमेटिक आ गया. HTTP and www, that is a world wide web, but I'm see here HTTP, I'm talking about now HTTPS. It's a hypertext transfer protocol. Okay, that send a request to the server and server gives the response to the client. रिस्पॉन्स दिया मुझे, यस ये देखो वेब पेज ओपन हो गया, गूगल का रिस्पॉन्स दे दिया. समटाइम्स रिस्पॉन्स विल नॉट गेट. ओके, सो नंबर ऑफ सर्वर्स जितने हैं 255 6 से लेके इतने कस्टमर जब आते हैं तो क्लाइंट आते हैं गूगल पे तो सर्वर डाउन होता है, लेकिन अभी बढ़ा दिया उन्होंने और. सो and what is the difference between HTTP and HTTPS? So S stand for secured. S is stand for secured. So it's a secured protocol. So observe carefully, whenever you are doing online payment, whenever you are going to do the online payment, okay, जब भी आप online payment send करते हो, so you must have to observe HTTPS. You must have to observe the HTTPS. Okay, HTTPS, secured website, always use the secured website. Okay, so SSL is required. SSL, most of the website are secured. See here, click here, it's a secured website. Okay, it's not harmful. Okay, HTTPS is there. See here, HTTPS, always use the website which have the HTTPS. Okay, that means it is very secured. Hypertext transfer protocol and secured. S stand for secured. जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ये हमेशा ऑब्जर्व करने का, सिक्योर्ड है या नहीं है. नाउ ओके, सो दिस इज hypertext transfer protocol that is sent to the server request. Then he has developed the W3C organization, right? World Wide Web Consortium. So see here, World Wide Web Consortium organization, what is the use? It's so freely can use HTML CSS. Okay, anyone can learn the HTML CSS freely. That is a website W3C school. W3 school is different. Okay, W3, W3, yes, this is the official site, right? They are using W3 school. Okay, here is the official site W3. It's the organization. See here, W3 World Wide Consortium. Okay, so that is organization is developed for the web technology, and he is founded by in 1994 by the Tim Berners-Lee. He is the father of HTML, or you can say he is the father of web application directly. Okay, that is Institute MIT. And Berners-Lee also developed the WWW and HTTP protocols. Okay, so also they have developed the TCP/IP. We are using this TCP internet protocol. हर एक डिवाइस को एक IP एड्रेस है. Okay, internet protocol. So, and these are the some scientists name. They have to, work on this networking and internet. Okay, so Ethernet. Bob has developed the Ethernet. इथरनेट पिन मीन्स जो आपके कंप्यूटर को लगाते हैं, देखो डायलिंग वाला लैन का कनेक्शन रहता है, दैट इज कॉल्ड द इथरनेट पिन. ओके, सो दिस इज द ऑफिशियल साइट फॉर द वर्ल्ड वाइड कॉन्सर्टियम. से W3C, इट्स नॉट अ W3C स्कूल, इट्स अ W3C, इट्स ऑफिशियल साइट MIT. दिस all these things are written here about W3C. Okay, worldwide with consortium, an international community where the member organization, full-time staff, public, okay, everything is written here, right? What is mission and everything. So this is what official site of the W3C. It's an organization who is developed Tim Berners-Lee. Okay, W3 organization. So you can view, no problem. Next.
So what is software, what is an application, or you can say what is application or what is the software? Why we need the software? That is for the automation purpose, right? So automation of manual business operation by using the programming language, that is known as software. So for the purpose of the business, we are going to use application softwares. Okay, so our business will get automated, right? So type of application: desktop application, mobile application, and web application. Desktop application means what? The application which is only run on or executed on single computer, that is known as standalone system, right? लोकल सिस्टम पे हम रन करते हैं. फॉर एग्जांपल MS ऑफिस हो गया, कैलकुलेटर हो गया हमने, ठीक है. मोबाइल एप्लीकेशन मीन्स ऐप जो आपके सिर्फ मोबाइल में ही यूज़ करते हैं. अब देखो फेसबुक जो है, फेसबुक का ऐप भी है और वेबसाइट भी है. आप ऐप डाउनलोड करते हैं ना, फेसबुक का ऐप भी है और वेबसाइट भी है, राइट. लेकिन वो दोनों भी का डेटाबेस सेम है. चाहे आप फेसबुक से वेब से लॉगिन कीजिए या फिर ऐप से लॉगिन कीजिए, आपका होम पेज आपको प्रॉपर मिलेगा, डेटा आपका ही रहेगा, बराबर है. आपकी प्रोफाइल पे आप प्रॉपर चाहेंगे. सो इसका मतलब क्या है, ऐप और वेबसाइट का जो डेटाबेस है वो कॉमन है. सर्वर जो है उनका डेटाबेस का सर्वर, दैट इज़ अ कॉमन, राइट. So mobile applications only you can run in the mobiles. Web application you can run anywhere. Okay. वेब applications हम मोबाइल में भी रन कर सकते हैं, टैबलेट टैबलेट्स कहाँ पे भी, राइट. सो सबसे पहले एक ही है कि बेस्ट वे हम वेब एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम घर में बैठ के भी वो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, हमारे बिजनेस की वगैरह चेक कर सकते हैं, राइट. मोबाइल एप्लीकेशन, सो मोबाइल फ़ोन्स या टैबलेट्स में हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ डाउनलोड फ्रॉम द प्ले स्टोर और एंड्रॉयड, ओके, एप्पल स्टोर फॉर iOS. वेब एप्लीकेशन दैट इज़ डिप्लॉय ऑन द सर्वर, ओके, ऑल आर द वेबसाइट्स आर डिप्लॉयड ऑन द सर्वर इन द गूगल. बहुत सारे गूगल नॉट सर्वर बट गूगल का क्लाउड भी है प्रॉपरली. सो हमने सर्वर पे डिप्लॉय करिए सारे वेबसाइट, और मेरा कंप्यूटर बंद रहो चालू रहो तो भी मेरी वेबसाइट चालू रहेंगी. ओके, इफ़ यू वांट टू एक्सेस तो यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर. सो दैट इज़ वॉट द मोस्ट यूज़ ऑफ वेब एप्लीकेशन. इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ वेब एप्लीकेशन का ही होता है आज के टाइम पे, और सारे कंपनी इस पे वर्क करते हैं, वही डेवलप करते हैं. सो व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन नाउ? ओके, व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन? सो वेब एप्लीकेशन क्या है, जहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस रहते हैं, कलेक्शन ऑफ पेजेस, वेब पेजेस रहते हैं, वहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल रहता है. क्लाइंट मतलब हम, क्लाइंट मतलब डिवाइस. ओके, यू आर यूजिंग, you are connecting now by smartphone and you are also connecting from computer. So you have the two clients. आपके पास दो क्लाइंट है, लेकिन यूज़र आप एक ही हो. आप मोबाइल से भी एक्सेस कर रहे हो, सेम थिंग यू आर एक्सेसिंग फ्रॉम कंप्यूटर आल्सो. So that are the two clients, means two IP address are different. Okay, two clients but only one user. आप एक ही हो यूज़ करने वाले. So this is the difference between the user and client. So we'll see, don't worry. So this is a web application is a client server model. Client server model. Okay. So this is client means a tablet or laptop. So we are sending the request to the server and give that will gives the response to the client. Okay. That is what server, client server model. The web application is always the client server model. So client server model, client में user interface रहता है, that is runs on the web browser that contain the web documents. Okay, electronic pages, e-pages. Electronic pages means e-pages that send a request to the server. Again server give the response to the client. So the most important thing is, कोई भी वेबसाइट में एप्लीकेशंस में ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है. कौन सी? One is the presentation layer, second is the business layer, and third is the data layer. Okay, so one tier, two tier, three tier architecture ऐसे रहते हैं. So see here the basic architecture of the web page. Web browser means you can use Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Safari, Opera. These are the web browser. So web browser, and we are going to write there the request, that is what google.com. So http web browser send the request to the client, send the request to the server. गूगल का जहाँ पे सर्वर है यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे. उस सर्वर साइड में हम टेक्नोलॉजीज लिखते हैं, HTML से सभी लिख सकते हैं, एंड डेटा इज स्टोर टू द डेटाबेस. सो वी आर गोइंग टू ओपन हियर वेब पेज. दिस इज UI.
इस प्रेजेंटेशन लेयर जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द प्रेजेंटेशन लेयर। देन मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो डेटाबेस के साथ, सर्वर के साथ डेटा जो है वो सर्वर को सेंड करते हैं और उसमें मैच करते हैं रियली द डेटाबेस डेटा इज अवेलेबल इन दिस डेटाबेस और नॉट। जो मैंने इसमें लॉजिक लिखा है डेटाबेस में अवेलेबल है क्या, यूज़र नेम पासवर्ड, बटन पे क्लिक होने के बाद वो होम पेज पे जा रहा है, डेटाबेस डेटा में जाने के बाद वो होम पेज पे ओपन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। दैट इज रिटन इन द सर्वर साइड। ओके, दैट इज अ बिजनेस लॉजिक। सो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, मेरा डेटाबेस प्रॉपर है, सो मेरे होम पेज पे जा रहा है वो। ओके, सो दिस इज होम पेज ओपन हो गया है, दैट इज माई डेटा इज अवेलेबल प्रॉपरली, राइट। मीन्स जो मैंने लॉजिक लिखा है दैट इज अ बिजनेस लॉजिक आई हैव रिटर्न। बिजनेस लॉजिक मतलब जो डेवलपर ने लिखा है। सो मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज करता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ओके, समथिंग डिफरेंट। सो नाउ व्हाट इज दैट हियर, फॉरगेटन पासवर्ड, दैट पासवर्ड यू एंटर इज इनकरेक्ट। ओके, कहाँ से चेक हुआ, ये सर्वर से चेक हुआ है, ऑलरेडी मेरा अकाउंट है और आप में जो मैंने जो पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड उस डेटाबेस में स्टोर नहीं है, वो मैच किया है, उसके साथ मैच किया है और लिखा है वहाँ पे कि अगर वो सही है तो होम पेज में, अगर वो नहीं है तो आपको ये मैसेज आउटपुट में प्रिंट करेगा। सो ये जो लॉजिक लिखा है दैट इज़ नोन एज बिजनेस लॉजिक, इसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। सो ये जो लॉजिक है ये हम लिखते हैं सर्वर साइड में। ओके, so server side logic, then you are connected to the database server. How it is work? Okay, so you connect a web via internet service provider, ISP जो भी है आपका, जियो, एयरटेल वगैरह, एनीथिंग। सो देन इट विल वी कैन राइट द एड्रेस, so for example google.com, anything. So DNS is there, domain name system. Okay, the name should be correct. Suppose if you enter the wrong name, so you will get the something error. Okay, गूगल। ओके, सो एक ओ निकाल लेता हूँ मैं, एक ओ निकालने के बाद पूरा ले रहा हो समथिंग, या आर वगैरह डाल दिया मैंने ऐसे। ओके, सो गूगलर, दिस वेबसाइट मीन्स दिस डोमेन इज नॉट अवेलेबल, राइट, दिस साइट कांट बी रीच बिकॉज check if this type in proper or not. Okay, try another one, DNS probe finish x domain. DNS is what, domain name system, domain name skip, आपने जो डोमेन डाला है वो इनकरेक्ट है, सो दैट इज DNS सर्वर। ओके, सो जो भी आपका आईपी एड्रेस है दैट इज आल्सो आईपी एड्रेस, डोमेन नेम इज आल्सो द आईपी एड्रेस गाइज। ओके, we can't remember the IP address of all this website, that's why we have given here the domain. So if you want to find the IP address of Google India, okay, see here the Google India IP address. So I want to, without writing the google.com, I am going to write this IP address. Okay, whether it is working or not I don't know, just click on here. See, some IP address are here, Google का IP address. Okay, so 180.149.52.0. Let us check whether this site will open or not. So each and every website has their own unique IP address, but we can't remember the IP address or the area website. So that's why we are given there the name, means that is known as a domain name. इसलिए हमने क्या किया, डोमेन नाम दिया है। ओके, इट्स नॉट वर्किंग, सो फाइंड द प्रॉपर आईपी एड्रेस। लेट अस फाइंड हियर, और आई वांट टू यूज दिस आईपी एड्रेस, इट इज वर्किंग और नॉट। डायनामिक आईपी भी रह सकते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। ओके, so I use here 180 point something, it's also not working this IP address. Sometimes बहुत सारे IP address दिए हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। so I want to use this working Chrome, directly put the IP address here, whether this redirected or not.
Its proxy servers are also there. Okay. IP address of Google. So let us find once again. Yes. So I want to use now this one. ये यूज़ करके देखते हैं हम, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे डाल के देखते हैं ये IP एड्रेस वर्क होता है कि नहीं। ipconfig is the command you can trace the IP address of any website. ipconfig. Let us check first this, whether this IP address is working or not. Okay, it's also not working. Actually, I have find one IP address. वो भी वर्क नहीं कर रहा है ना। ये चेक करके देखते हैं हम। 64 समथिंग इज देयर, यही है ना वो। 641273। ओके, अगेन डिफरेंट IP एड्रेस। So each website has their unique IP address. So we can't remember the IP address, so we use their domain. एक डोमेन नाम दिया जाता है कि google.com ऐसे टाइप से। DNS servers. So many DNS servers are there. Okay, so cloud Google IP address engine optimization. 64 आई थिंक आई हैव यूज दैट वन। ओके, मैंने वो यूज़ किया है, IP एड्रेस चेक किया है। ठीक है, थोड़ा चेक कर लेते और एक बार। ऑप्टेन टू गूगल IP एड्रेस। IP एड्रेस ऑफ google.com अगर ऐसे लिखे तो यस। सो या public domain, so we can find that public domain. So now I want to use here this IP. Let us check whether it is working or not. Public domain ही चाहिए। और we have the DNS। वो भी वर्क नहीं कर रहा है। सो माई कॉन्सेप्ट इज़ दैट कि जो डोमेन रहते हैं उनका एक IP एड्रेस रहता है, यूनिक रहता है। अब अभी मेरे कॉन्फ़िग वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। IP कॉन्फ़िग नाम का एक कमांड यूज़ करते हैं हम, डायरेक्टली हम उसका IP एड्रेस ट्रेस करते हैं। सो फॉर IPv4 इज़ दिस, फॉर SV6 इज़ दिस, Google public domain 64 instead of this. 64 समथिंग से हम स्टार्ट करते हैं, 64 ही है। और समथिंग इज IP एड्रेस देयर, उनके चेंज होते रहते हैं डायनामिकली, समटाइम्स हमको मिलता नहीं है। ओके, अगर मुझे कल मैं सर्च करके रखता हूँ, आपको बताता हूँ IP एड्रेस, या फिर फेसबुक का IP एड्रेस हम चेक करते हैं। IP एड्रेस ऑफ facebook.com। ओके, उनके भी बहुत सारे IP एड्रेस होंगे चेंजेबल। सो मैं ये वाला कॉपी करता हूँ। ओके, ये वाला IP एड्रेस। सो नाउ यस, space, okay, yes, let us check now whether this IP address is working or not.
मैंने तो लिख के दिया है नेटवर्क इंफॉर्मेशन, होस्टिंग इंफॉर्मेशन 69.63.176, वो भी वर्क नहीं कर रहे। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है यहाँ पे। ओके, यूनिक वेबसाइट को एक आईपी एड्रेस रहते हैं, ठीक है, मैं ये वर्क करूँगा। ये यूनाइटेड स्टेट का है, ओके, मुझे चाहिए इंडिया का। सो उनकी रेंज रहती है एक, ओके, 1 से स्टार्ट होगा टू 255 तक। तो समटाइम्स सी कैन सी द गूगल आईपी एड्रेस रेंज, ओके, दीज आर द रेंज। सो आपको अभी फ़िलहाल कौन सी वर्क कर रही है वो पता नहीं रहती है, ओके। साइमल्टेनियसली वो चेंज होते रहते हैं आईपी एड्रेस। सो दीज आर द रेंज फॉर दिस आईपी एड्रेसेस, ओके। ये रेंज है आईपी एड्रेस की, इसमें से कौन सा वर्क करते हैं आपको चेक करना पड़ेगा। एनी वन कैन, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज़ रेंज। एक एक करते बैठेंगे तो पता नहीं कब कौन सा वर्क होगा कौन सा नहीं वर्क होगा, ओके। दीज आर द रेंज और डायनामिक चेंज होते रहेंगे, ओके। So see here, so DNS, that is a 12-digit IP address is there, that is separated by the periods, means dot, okay, means full stop. So the IP address is the unique, and their domain name is also the unique, right? We can access from the computer, we can access from the phone number. So unique number, that is DNS. तो यूनिक नंबर से हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, विल गिव द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर। सो व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र? See, we are using the web browser. I am using here web browser, Google Chrome, गूगल क्रोमो यूज़ कर रहे हैं हम, या फिर एज यूज़ कर सकते हो, या एनी अदर ब्राउज़र यू कैन यूज़, ओके। सो वेब ब्राउज़र इट्स अ लाइट वेटेड इंस्टॉल इन द क्लाइंट मशीन, then we can send the request to the server from the client, okay। so हम यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को, दैट इज नेविगेट टू द सर्वर और वेब पेजेस एंड विल गिव यू द रिस्पॉन्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द वेब ब्राउजर इज execute HTML CSS JavaScript file that is displayed on the user. So once you open any website, suppose I have opened this site, so these are the contents in HTML, CSS and JavaScript. So this is world first website, we have the only HTML contents here, only HTML content. So these content are executed. So this is original one, this is original one code. By refreshing, we are getting this output, right? Suppose I am going to open this, the browser is executing this code, right? Browser is executing this code and it is displaying the alert message, you required username, okay. Now we want to see the original one and check here, this is the original one code, okay. But after double clicking, it is showing directly web page. So this code means the browser is always execute this code, HTML, CSS, JavaScript. The who is going to execute this one? Browser. Browser provides the navigation among the web pages, and browser execute HTML, CSS and JavaScript files that display the output to the users. Okay, what are the browsers? इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 अभी एज यूज़ करते हैं, ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोमो। नाउअडेज वी आर यूजिंग द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र इज गूगल क्रोमो, ओके। मोबाइल ब्राउज़र हम कौन से यूज़ कर सकते हैं? इतने सारे मोबाइल ब्राउज़र है, हर एक मोबाइल के प्रॉपर वे से, या फिर हम गूगल भी इंस्टॉल करते हैं, वेब ब्राउज़र भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये मोबाइल वेब ब्राउज़र से भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को, ओके। सो ये यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। इन द टुमारो सेशन वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज सर्वर, क्लाइंट, यूज़र, ओके। सर्वर क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है, यूज़र किस कौन होता है, और सेंड कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रोटोकॉल्स कौन से हम यूज़ करते हैं, SMTP, MIM, ब्लॉग्स क्या है, फॉरम क्या है, वेबसाइट किसको बोलते हैं, ओके। वेब एप्लीकेशन कैसी रहती है, स्टैटिक वेब पेजेस कैसे रहते हैं, डायनामिक वेब पेजेस कैसे रहते हैं। सो विल सी इन द टुमारो, देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डायरेक्टली स्टार्ट द HTMLs. So we are going to write this program